You feeling relaxed? Okay. Yeah, I'm feeling glad. Are you feeling fresh? Yeah, I'm feeling fresh because of the environment. हमारे पास कितना डर है, राइट? तो हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए हैं, तो आप लोगों से बात अगर नहीं करेंगे तो मेरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे शहर में, हमारे एरिया में एक दिक्कत है, अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसको लोग समझता है कि बहुत ही होशियार है, राइट? कहाँ से शुरू करते, कौन सा एक्सरसाइज पहले करना है? पहले रनिंग करना चाहिए, सबसे पहले टहलना चाहिए, उसके बाद रनिंग करना चाहिए। रनिंग करने के बाद जब स्वस्थ व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने के बाद यही सब बोला, जब जो जिसके कैंडिडेट के निकला है वो सब करता पलट, लेकिन व्यायाम पलटे करना चाहिए। बिकॉज इन आवर लोकेलिटी द एम्बियंस ऑफ इंग्लिश इज नॉट रेलिवेंट। Why is it so actually? Let's go to talk these students, those who are doing exercise. Okay, so I think for the first time we need to talk to these guys. Hey, what are you doing? I'm exercising Okay, why are you doing exercise? because when we do exercise, our body is fit and healthy. Okay, you want to keep yourself healthy. Just continue. Okay, that's not a problem. Okay, you should be continue. Okay, and can I know from you? You tell me, what are you doing here? I am doing exercise for strength in our feet and all. This exercise is very useful for our feet. It gives a strength in our feet, and it also helps in running fast and all. So we are doing this exercise. Okay, you enjoying here? Yes, I am enjoying very great, and it's a very giving mind-blowing exercise Okay. for me. Can you give some feedback? Okay, sorry, feedback, I cannot say that. Can you suggest someone about the importance of exercise? Okay, what is the importance of exercise? I mean to say that. Importance of exercise first. The exercise keeps our body strength, and it also helps in weight loss. When someone is very weight, he is overweight, it also helps in weight loss. And its main thing is it gives the fresh starts of the day. And Okay. So somebody do evening exercise, somebody do morning exercise. Which exercise you recommend? Tell me. evening exercise or morning exercise, any time we can do, but I think morning exercise is better, such that starting day with the exercise is most important thing. Okay. We wake up at any time in the morning. Right. The most important thing, we have to stretch our body, and we have to start on Say body, not body, right? yeah, Okay. we have to stretch our body and start our day with fresh mood. You're looking slightly intense. Okay, why? I am not looking slightly tense, but I'm doing exercise, and also it gives fresh mood and all. All right. Thank you very much. Okay, I'm just coming back to you. Yeah, from this, tiny and very slim boy. Okay, you're very slim. What are you doing? I'm doing exercise. Is it important for you? You will lose your body weight. no, Okay. No problem, but it will make my biceps also. Okay, you want to make your biceps. Okay. Yes. What is biceps? Biceps means Check out the hands outside of your pockets. Yeah, please tell me. bicep means our hands muscle. Okay, That's- so you want to make that. Yeah. Why? it will look impressive. Hmm. That's why. Or you want to look impressive, you want to Yeah. look smarter, that is why you are doing Yes. exercise, right? Not for your fitness, you're doing for your smartness, yeah? I'm doing this thing also for my fitness, and if I will be fit after that, I will also look smarter. That's why. Okay, all right. Just continue, please. Continue. Yes, sir. Can you stand here? Right. Okay. Sir, tell me what's your name first? Huh? This is Galib. Galib. Okay. Galib. Mirza Galib. Right? No, Something- no. Something like that. No, it's No. like MD Galib. So, Mr. Galib, Galib. you need exercise. Galib needs exercise. Why? Galib Yeah, has to, recite. Tell me, no problem. You tell me. No, everyone needs exercise. If you do exercise in morning, then it will be beneficial for you.
it will just like your body needs exercise in every नहीं, morning. body. All the people speak body here ना. Body. Body, everybody needs exercise every day. Everything. If you do exercise, just like your blood flow will be more, your heart is just like be clean, and your mind is just like so pure. So that's the reason. All right, all right. So you're doing exercise for that, Yeah, okay? yeah. So are you feeling relaxed, okay? Yeah, I'm feeling glad. Are you feeling fresh? Yeah, I'm feeling fresh because of the environment. Environment, okay. Yeah. So oxygen की पूर्ति हो रही है, right? Yeah. Thank you. Continue, please. I just want to talk to actually. Right. Come this side, please. Come this side. Yeah. Stop. Please stop. I want to talk to you. Right. You tell me. What are you doing? Why are you running, yeah? Actually, I'm running for Huh? Bihar police exam, right? I have Okay. cleared my examination written. So now I'm preparing for physical, right? Okay. You're preparing for physical. Okay. All right. You tell me what are you doing, yeah? I want to fit my body. Okay. You want to keep your body fit. You're already fit, yeah? Yeah, but I want to more fit. Okay, you want to be more fit, okay? How many rounds you did? Now I have completed just 5 rounds. 5 rounds, just 5 rounds. I am not able to do 1 round. You're telling just 5 rounds, okay? How many rounds you have completed? 5 rounds. 5 rounds you have completed. Both of your brother, friends, what? Friends. Your friends, okay? You're also doing for Bihar Police? No, I want to just to fit my body. Okay, you want to keep your body fit. You also want to keep your body fit, okay? Yeah, as well as Okay. because I have to clear my physical test, so that Okay, all right. You enjoying here? yeah, why not? All right. You enjoying here? Yes, yeah. तो जानते हैं? जानते हैं Okay, कौन है आपके ये? यही घर के पास वाला घर के पास में ऑल राइट हम हम लोग इंग्लिश क्लास चलाते हैं ये हमारे पास पढ़ने आते हैं खातूपुर में ही राइट और ये बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से आते हैं तो हम लोग इसको बाहर में बोलने का थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं सो दैट कि डर हट जाए आपको क्या लगता है कि ये अंग्रेजी बोलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करता है मतलब वही मतलब बच्चे से नहीं पढ़े हैं ना अंग्रेजी इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में और हिचकिचाहट होता है तो ये होता है सबके साथ होता है अभी आपको हेजिटेशन हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा और मतलब कुछ वर्ड याद रहता है और कैसे बोले वो तरीका मालूम नहीं रहता है जिसकी वजह से नहीं बोल पाता है इंग्लिश राइट अंग्रेजी बोलने की कोई बात नहीं बात हिंदी में भी हम थोड़ा सा डरते हैं बिकॉज हम लोग नए हमारे बेगूसराय में क्या है कि बाहर के लोग तो कम ही आते हैं ना ठीक है तो हमारे को एक्सपोजर नहीं मिलता है यहाँ पर अब शहर में जाओगे तो डेली नए लोगों से मिलते हैं अब 4 दिन अगर लगातार आएंगे तो हम लगभग सब लोग को जान जाएंगे यहाँ पर लेकिन किसी दिल्ली के या किसी मुंबई के किसी बड़े शहरों के पार्क में अगर जाएंगे तो वहाँ पर सब लोग नए दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नए लोगों से बात करने का डर खत्म हो जाता है तो कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करता है डर ही लगता है ना डर ही की वजह से नहीं बात कर पाते नए लोगों को मतलब ऐसा लगेगा उसे टोकने में भी डर लगता है उसे शुरू करें बात लगेगा कि अगर मैं उनसे बात शुरू करूंगा तो वो हमारे लिए क्या सोचेंगे राइट सो नीतिश ही इज योर फ्रेंड ओके एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल ओके योर विलेजर्स थ्रू हिम Actually, everybody should learn English because that's very important in this century, right? And as you know that we have our advanced technology. For this, we need English must. It is very important for everyone as Bihari also. Okay, yes, for Bihari, of course, this is very important. Rahul, you tell me something. What do you think? Your friend is here because आपके दोस्त का दोस्त है तो आपका दोस्ती हुआ, right? Okay, so what do you feel? I feel very happy. I met him and he said, Do you not want to know his name? "Yeah, I don't know his name. Ask ना. What is your name, brother?" My name is धनराज कुमार धनराज जो कि आपका ये वीडियो YouTube पे जाएगा. Do you have any problem? नो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं थैंक यू धनराज ओके ओके ऑलराइट लेट्स टॉक टू द otherwise the new people okay I just want to understand is English important hi sir can I talk to you हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हम बात करेंगे हिंदी में ही सर ये जानना है हमारे को कि बेगूसराय में एक्चुअली लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोग लैंग्वेज पे कम फोकस करते हैं इसका क्या रीज़न हो सकता है लैंग्वेज पे फोकस इसलिए किया जाता है कि आगे मतलब इंग्लिश मीडियम थोड़ा मजबूत नहीं हुई वीक है सब इसलिए ओके तो अगर कोई चीज़ हमारा वीक है तो हमें ट्राई नहीं करना चाहिए इसके लिए अब कुछ ट्राई करना चाहिए जिससे कि बेहतर हो सके पहले से राइट तो हम खातूपुर से आए हैं
पास में ही हमारा कोचिंग सेंटर है। आपके गांव के भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं एंड ये लोग इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, राइट, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आज हम बाहर आए, क्लास से बाहर आए। नॉर्मली हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड नहीं है, हम लोग क्लास में ही क्लास करते हैं, राइट। तो क्या बाहर में आने से कुछ ये जो डर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज को बोलने में डर होता है, तो क्या ये डर हट सकता है बाहर आने से? जी हाँ, हट सकता है करने से, स्पीकिंग करने से, इंग्लिश बोलने से ठीक हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। हो जाएगा। तो कुछ सजेशन दे सकते हैं हम नॉर्मल लोगों को कि लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए हमारे को, बट हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हम जब बाहर जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में छोटा बड़ा कोई भी इंटरव्यू हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश से ही स्टार्ट ही करता है, व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उस वक्त हम अपने बारे में भी बात नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी इश्यूज है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? जैसे कोचिंग संस्था जितना इंग्लिश बहुत कम है टीचर, बहुत गिना इंग्लिश टीचर का। तो इंग्लिश को हम इंग्लिश की तरह पढ़ भी तो नहीं रहे ना, हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। इस तरीके से इंग्लिश को तो नहीं सीखा जा सकता ना। इंग्लिश सीख सकता है, बोलने के बहुत तकलीफ होता है, बच्चा को बोलने इंग्लिश नहीं आता, बहुत सारे 90%। मैं आपको सिंपल एक डेमो देना, आपके गांव के बच्चे हैं बट ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, एंड ये जो छोटा सा बच्चा है ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश। कैन यू कम फॉरवर्ड स्लाइटली? ठीक है, कैन यू स्पीक समथिंग अबाउट दिस एनवायरनमेंट? Yeah, I can speak a lot of thing about this environment. You can see there are a lot of people those who are running in morning. I mean to say they are doing morning jog, and this helps us to make our blood circulation high and this type of things. Right. Okay. Your first time outside of the class, what do you feel today? Tell me. I'm feeling very energetic, and I also have some fears. That's why I'm here to eradicate that. कैसा लग रहा है आपके गांव का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है? अच्छा लग रहा है, इससे बढ़िया है, इसी तरह सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा इससे। तो बाहर हम लोगों को निकलना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, राइट, बात करने के लिए, ताकि डर को हटाया जा सके। ठीक है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को इंग्लिश को लेकर के? यह है कि ठीक है, कोचिंग संस्था आप खोले, प्रचार प्रसार कीजिए, उससे बेहतर रहेगा, सब जानकारी मिलेगा, उसके लिए बच्चा वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पढ़ेगा, फिर सीखेगा इंग्लिश, बेहतर हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम कुमार है। विक्रम, थैंक यू टू टॉक टू यू। ओके, हम फिर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? ओके, सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली। these guys are showing great interest, okay, and they are trying to support us, okay, and everybody will support you. If you want support, then only people will support you. Normally what happen, we think previously, we think a lot, if we go outside, what will people think about us? This thought has to be stopped actually, right? Because of that we are not able to do, okay, outside activity. And with the outside activity, the main thing what will you learn, okay, you will know how to start talk with new people, right? And you will have natural environment, and in the natural environment, if you are able to speak any language, okay, English, it will surely make you a perfect speaker. Actually we want to talk to the crowds, okay. These guys are doing exercise today, and they are doing some preparation, okay. I think you are doing for Bihar Police and all. What are you doing for here? क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? यहाँ पे ये फिजिकल हो रहा है, ठीक है। तो सारे के लोगों को जिनका भी बिहार पुलिस बना हुआ है रिजल्ट, उनको फिजिकल का ट्रेनिंग दिया जाता है और सारा प्रैक्टिस किया जाता है। हाई जंप होता है, गोला होता है और रनिंग होता है। ओके, सो इन द मॉर्निंग यू कम, कितने बजे आते हैं आप लोग? हाँ, ये तो मॉर्निंग 4:30 बजे आते हैं और फिर शाम में भी आते हैं और शाम में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और सो भी करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो आप हमारे बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं? बिकॉज ये जो मेन एक्सरसाइज है एक्चुअली क्या आता है, विंटर के टाइम में नॉर्मली हम लोग सुबह में उठ भी नहीं पाते, राइट? तो क्या करना चाहिए कि हमारे को अवेयर हो जाए, और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये तो एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि कम से कम जो नहीं 4 बजे उठ पाए तो 5 बजे उठे, थोड़ा जॉगिंग करे, थोड़ा रनिंग करे, कम से कम जो है अपने शरीर के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है इस जीवन भागदौड़ जिंदगी में कि हम स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम जो है 24 घंटे आवर में आप आधे घंटे भी निकाल सकते हैं अपने लिए। उसके बाद फिर जो है अपने जो भी मतलब काम है उसके लिए आप तैयार रही हो जाए। स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कमा रहे हैं, वो भी आप यहीं, हम लोग यहीं छोड़ के चले जाएंगे, बट अगर हेल्थ रहा तो हम उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। बोले कि इस भागदौड़ जिंदगी में सभी कोई चाहते हैं कि मेरा शरीर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखने में भी अच्छा लगे, पर्सनैलिटी ठीक रहे, थोड़ा सा देखने में एकदम गुड लगे। या
तो उसके लिए जो है कम से कम नहीं ज़्यादा समय 24 घंटे अगर आपके पास है तो कम से कम आधे घंटे सुबह में उठिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए। उसके बाद मस्त होकर आराम जो है नहा धो के फिर अपना जो है ड्यूटी में जाइए, जो भी काम है वो करिए। तो हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, ये भी कहा जाता है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और लुकिंग सो गुड। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक हमारे बच्चे क्या नीतीश, कैन यू प्लीज कम हियर? या ये हमारे सीनियर स्टूडेंट है एक्चुअली, एंड ही स्पीक्स वेरी ब्यूटीफुल इंग्लिश। ओके, सो आप भाई को कैसे जानते हैं? Actually, he is my brother, a friend. That's why I know him. ओके, सो आप इनसे जब बात कर रहे थे, ही वॉज टॉकिंग टू मी, राइट, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, आई थिंक मे बी, ओके, इन बेगूसराय एक्चुअली प्रॉब्लम इज व्हाट, लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर एक्चुअली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ लैंग्वेज का है कि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू डू गवर्नमेंट जॉब, ओके, नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो फिर प्राइवेट के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इश्यूज होता है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम बात नहीं कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी भी हो, तो हमारा हिंदी में एक इशू दिखता है कि हमारा लोकल टच रहता है उसमें, राइट। तो इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम को किस तरीके से हटा सकते हैं, फर्स्ट आई वांट टू नो, फिर ये बताएं। वो तो देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो अपना लैंग्वेज है, देश का लैंग्वेज है, इंडिया का लैंग्वेज है, उसका प्रयोग करें। उसके बाद जो है अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे आप जो है इंग्लिश सीखिए ताकि वो आपके आगे जो काम देगा। लेकिन हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा, आप अपना खुद का लैंग्वेज यूज करिए, देश का लैंग्वेज यूज करिए, उससे जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हिंदी है, हिंदी भी दब गया 2-3 स्टेज में, सिर्फ स्टेट में इंग्लिश, हिंदी। हाँ सर, पता चला। ये हम बोल रहे हैं कि जो है मेरा फर्स्ट जो लैंग्वेज है, हम उसका नीचे हमारा लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आता है हमारा इंग्लिश, नहीं कि जो है इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है ही, आता नहीं इंग्लिश, ऐसे भी आते हैं सेकंड लैंग्वेज। वही बात हम बोल रहे हैं, तो इंग्लिश जो मेरा सेकंड लैंग्वेज है, तो इंग्लिश ज़्यादा ना फोकस करके पहले हमें अपना जो मातृभाषा है उसको फोकस करना है, उसके बाद जो है इंग्लिश करना है। तो हिंदी का जो हालत, मतलब सॉरी टू से, बट लेकिन हिंदी का हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी लोग बोलते हैं, राइट ना, बट नॉर्थ इंडिया में भी हिंदी जो करेक्ट हिंदी बोलने चाहिए उसमें मिस्टेक होने लगे, राइट। ऐसा क्यों हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेवार उसके लिए जो है ना, ये जो है ना, मतलब गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग जो है इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। हिंदी पे, इंग्लिश पे भी नहीं, लोकल लैंग्वेज ज्यादा फोकस करने, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, लोकल लैंग्वेज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आजकल के जो पेरेंट्स है वो छोटे छोटे बच्चों को चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोले, इंग्लिश पढ़े। और जो बच्चे को बच्चे मतलब 4 साल 5 साल के हैं, उनको जो हम इंग्लिश भेजेंगे, इंग्लिश स्कूल में भेजेंगे, कमजोर हो जाए, ऑब्वियसली है कि हिंदी मेरा कमजोर होगा, और वहीं से जो है मेरा लैंग्वेज जो है धीरे धीरे दबने लगते हैं। बात यही है। तो हमें लैंग्वेज बोलना चाहिए, ना कि डायलेक्ट्स बोलना चाहिए। हम लोग डायलेक्ट्स बोलते हैं, इस वजह से भी हमारा लैंग्वेज खराब हुआ है, ठीक है। अब डायलेक्ट्स का मतलब यही है कि हम लोग जो बात करते हैं, नॉर्मल सा एक वर्ड को आप कुछ और तरीके से बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और तरीके से बोल रहा है, कोई और कुछ और तरीके से बोल रहा है, तो उसमें ना ग्रामर है ना उसका रिटन कोई फॉर्म है। इस वजह से हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो खराब हो रहा है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज है जिसमें ग्रामर है, जिसमें रिटन है, वो खराब हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक है, मुझे लगता है, मैं अपने क्लास में बोलता हूँ कि अरे इंग्लिश नहीं बोल सकते ना, कम से कम घर में आप प्रॉपर हिंदी बोलिए। इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश बोलने का मतलब इजीली बोल लोगे, क्योंकि दोनों में लैंग्वेज, दोनों में ग्रामर होता है, और ग्रामर इसमें संज्ञा कहते हैं, उसमें नाउन कहते हैं, बात तो सेम ही है। तो इसीलिए हमें कम से कम हिंदी बोलना चाहिए, राइट। घर में हिंदी शुरू करना चाहिए, लोकल लैंग्वेज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपका जो डायलेक्ट्स है नहीं बोल करके आप लैंग्वेज शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली बोलना इजी हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे शहर में, हमारे एरिया में एक दिक्कत है, अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसको लोग समझता है कि बहुत ही होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है। तो ये वाला बात बहुत गड़बड़ है, जिसके वजह से मतलब लैंग्वेज को हम बहुत ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं। क्या ये सही है, गलत है? देखिए, मतलब एक तरह को आप मतलब बता सकते हैं या कह सकते हैं कि जैसे कि सार्वजनिक चीज़ है, जैसे कि मतलब ऐसे आप जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश अच्छे जानकार हैं और हम नहीं हैं, तो आप मतलब कि बीच में आकर अगर आप इंग्लिश बोलिएगा, हम सब हिंदी मतलब भाषी हैं और हिंदी में बात करते हैं, और आप इंग्लिश में बोलेगा तो फिर आपको जो है ज़्यादा कुछ इस तरह बात सुनने को मिल जाएगा। वहीं आप जो यहाँ पे जैसे कि
10-20 जो भी है इंग्लिश में सारे जानकार हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं आएगा। तो कहने का सिर्फ एक अर्थ है कि हमें जानना चाहिए सब चीज, बट ये जरूर समझना चाहिए कि हमारा जो हिंदी है हमारा मदर लैंग्वेज है, उसका अच्छे से इस्तेमाल इसको करें। यूज करने आना चाहिए। और मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि बोलिए, इंग्लिश सीखिए, बस उस जगह बोलिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ जरूरत है जी। बाकी बात आप अपने लैंग्वेज में बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको इंग्लिश आता है या हिंदी आता है या कोई भी लैंग्वेज आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगा ठीक आपका, हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर, ठीक है। अंदर जो बैठा है हेजिटेशन उसको सबसे पहले दूर करना है, उसके बाद तो हो ही जाएगी। ओके, नीतीश भाई बात करेंगे थोड़ा, क्या कहना चाहते हैं आप इंग्लिश को लेकर? आप इंग्लिश में बोली बिकॉज आप इंग्लिश बोलना आता है। Actually, as Bhaiya said that we should speak always Hindi, but I am agree with him. We should use Hindi language in our personal life, but in professional life we have to use in English language, right? So that's very important. Because it is happening in our society and in the any jobs and you go to any service, okay, where there you find okay English has become official language actually. आई डोंट एग्री विद इट, होना नहीं चाहिए था ये, लेकिन एक्चुअल में आप बिहार में भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपको इंग्लिश से शुरू किया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? तो उस चीज के लिए तो तैयार होना ही चाहिए हमारे को, राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड हियर? No, that's I think we should talk some more people because we. Sir, your name? Roshan. Thank you very much. Okay, to talk to me. Thank you very much. Okay. Person, okay, and he is also doing exercise here, and he is trying to. आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर या फिर ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज? नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे Normal हैं। exercise एक्सरसाइज, हाँ, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ऐसे सुबह उठ खाते हैं जो करने के लिए पर डे का रूटीन है। मान लीजिए कि जैसे पढ़ाई डेली होता है ना, उस अनुसार डेली पर डे ऐसे करते हैं। दोनों जरूरी है एक्चुअली। एजुकेशन अगर जरूरी है तो हमारा एजुकेशन बहुत है बट हम अनफिट है, बहुत पैसा है बट अनफिट है, बहुत अमीर है अनफिट है, तो हम उसको कैसे एंजॉय कर पाएंगे, राइट ना? राइट, तो हमारे लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो सबके लिए जरूरी है। हाँ राइट, कहाँ से शुरू करते, कौन सा एक्सरसाइज पहले करना चाहिए? पहले रनिंग करना चाहिए, सबसे पहले जैसे पहले टहलना चाहिए, उसके बाद रनिंग करना चाहिए। रनिंग करने के बाद जब स्वास्थ्य व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने के बाद यही सब बोला, जब जो जिसके कैंडिडेट के निकला है वो सब करता है, लेकिन व्यायाम पर डे करना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। सबसे मेन फायदा क्या है एक्सरसाइज का? मेन फायदा इसमें से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है ना, शरीर के लिए सब लाभदायक है सब चीज़। प्राकृतिक हवा है, इस पर्यावरण अच्छा अनुकूल रहता है ना, स्वस्थ रहता है शरीर, राइट। तो आपको पता होगा कि मैं एक इंग्लिश क्लास चलाता हूँ पास में ही खातोपुर में, राइट? ओके, नाम है SMB इंग्लिश, ओके। और मैं लोगों को बोलना सिखाता हूँ इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाँ बोलने के लिए सिखाता हूँ, राइट? और हमारे यहाँ थोड़ा सा इस तरह का इन्वायरमेंट थोड़ा कम है, पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश हियर, दे लर्न ग्रामर, ट्रांसलेशन और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ के लोग ट्रांसलेशन ग्रामर उनको आता है बट बोलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, तो उस चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है ये जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है। बच्चा का टॉकिंग करने के लिए इंग्लिश अभी जैसा अभी लैंग्वेज हो रहा है, सब कुछ समय इंग्लिश ही टॉकिंग हुआ अधिकतर। अभी बच्चा के सभी जगह देखते इंग्लिश टॉकिंग करना सिखा रहा है, सब जगह इंग्लिश मीडियम सिखा रहा है, क्योंकि बच्चा जो हिंदी इंग्लिश है ना, दोनों के इक्वल होना चाहिए, राइट? ओके, इन्हें डर ना लगना चाहिए बच्चा का इंग्लिश हिंदी बोलने में किसी को। तो बोल क्यों नहीं पाता भैया? आप शायद बात करना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण। ओके, रामकृष्ण, गिव योर हैंड प्लीज। Okay, Ram Krishna Kumar. Yes, sir. Oh, that's good name. Okay, all right. So I think you're comfortable in English. Of course. Okay, all right. Okay, so you're from. You please be here. आप भी यहीं पे रहेंगे, ठीक है? You're from. I mean, Bihar board or फिर any CBSE board? I am from Bihar boards. Oh, that's good to know actually. Right. Okay. So what do you think about the environment of this area? About language? Okay, language के बारे में क्या environment हमारे district का? As you know, in our locality, most of the people speak Hindi. They don't comfortable in speaking English because they are from BSCB, so they are unable to speak in English. सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम होती है बोलने के वक्त? क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लोग बोलना से घबराते हैं? As I feel so, if you don't have the good word building stock, then you will be comfortable. Then you will be completely unable in English. All right.
So you First, believe you should have a good stock of word. वर्ड्स, आपको लगता है कि पहले वोकेबलरीज होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, तभी इंग्लिश को बोला जा सकता है, राइट। और कुछ है जिसकी वजह से बोलने में प्रॉब्लम होता है? Because in our locality, the ambience of English is not relevant. Okay. Why is it so? Actually, in our area, the ambience is not favorable for English. Okay, environment is not favorable for English. Why? It's not about English. मैं अंग्रेजी को सिर्फ प्रोपेगेट नहीं करना चाहता यहाँ पर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि we must speak a language. चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बट लैंग्वेज बोलना चाहिए हमारे को। डायलेक्ट्स नहीं बोलने चाहिए। लोकल लैंग्वेज बोलने से क्या हो रहा है, हमारे ओरिजिनल लैंग्वेज पे उसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव, वी मेक मिस्टेक्स इन हिंदी। हालांकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी ही मेन लैंग्वेज है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पीक हिंदी वेरी ब्यूटीफुली। तो इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? You know, the main reason of people not are completely comfortable in English because they are not interested in English since childhood, according to the ambience. Right. So they are not comfortable in speaking English. ये कौन सी बात है कि अगर सीख लेंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? अगर हम अंग्रेजी सीख भी लेते हैं तो हमारा हिंदी और मजबूत हो जाएगा। अगर हिंदी अच्छे से बोलेंगे तो ऑब्वियसली हमको अदर लैंग्वेज को भी अच्छे से बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि मैं वो भैया से बात कर रहा था कि लैंग्वेज का मतलब है कि उसमें ग्रामर होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जब हम एक लैंग्वेज में पकड़ अगर होता है, दूसरे लैंग्वेज में पकड़ आसानी से हो सकता है हमारे को, राइट। सो कोई मैसेज देना चाहेंगे टू आवर व्यूअर्स, ओके, कि शुड दे लर्न इंग्लिश बिकॉज इन बेगूसराय यू नो दैट देयर इज नो एनवायरनमेंट ऑफ English speaking, right? Okay, so should we learn English or not? Of course, we should learn English. Without English, we are not. Of course, we should learn English. If we don't know how to speak English and and not unable to read English, then it's become very difficult in further time. So we should focus on English and try to learn English. All right, okay. Hey, do you know him? No, I don't. You don't know. He's from you're from Lakho? Yes. He's also from Lakho. Yeah. He is also from Lakho, right? And he is singer as well. Everybody knows him. He's a very good singer, right? Okay. And can you come forward here? Come forward. Come forward. What do you want to say? Because you're you know, maybe relative, maybe friend, okay, maybe your villagers, right? So what do you want to say about it? Okay, everybody is cooperating here. What do you want to say? Actually, I'm very glad to see that everybody is feeling comfortable to talk to you, Right. and this is also an achievement. Right. When we're coming Yeah. outside from our class, we're feeling like these guys won't support. Okay, ये सबसे normal feeling होता है, लोग support नहीं करेंगे. But if you do right things, everybody is ready to support you. Because we overthink about people, what they will think about me, and what will happen after if we will do this thing. Okay, can I talk to you, Chandrajit, please? He is from Himra. Yes. Okay, all right. So, what do you want to say about this beautiful crowd? I want to say all are here, that persons are here are very doing very hard work for their goal, and someone is preparing for the army run, and someone is preparing for Bihar police runs. So they are doing different exercises, runnings in limit times, and jumping and throwing the ball, which is about 8 kg, which is demanded in the physical of Bihar police and all. So they are preparing hard for it, and I think they must get their goal in time.